Dear students, I hope you are all doing well. My name is Muhammad Salim, and today again we are going to start uh, the one act play Progress, which we have studied in some of our previous sessions. And we were reading this one act play Progress. We have covered almost half of this text, and today we are going to start again reading this play, and I hope today we will give it a final touch. First of all, we go to start it. Let me recapitulate our previous knowledge. In this play, we have two main characters. The first main character of this play is Professor Henry Corey, who is a scientist and who is doing some work in his lab. And the second major character is Mrs. Milton, whose actual name is Charlotte, and she is Professor Henry Corey's sister. And the third character, which appears in the first section of the play, is Hannah. Hannah is a servant at Professor Henry Corey house. Two other characters which you will meet in this play are, the first character is Edie, who is Miss Milden's son, who was killed in World War First, and because of his death, his father Tom, who is Mrs. Milton's husband, he died because of heart failure out of the grief of his son's death. So these two characters you will also meet them in this play, and as the play starts, we can see that Professor Henry Curie is sitting in his lab type room, and he is doing some experiments. Meanwhile, he was joined by his sister, Mrs. Milton Charlotte, and there is a hard conversation between the two. And Professor Henry Curie is going to invent something devastating, something that is very dangerous, and he claims that it will short the duration of wars, and as it would be more devastating, it would be more dangerous and harmful, because as we know that Progress is an anti-war play, and its all discussion is about wars and battles. So Professor Henry Curie is going to invent a new bomb, with which we can easily destroy the whole cities. He claims that it will be the only bomb which will give him wealth and fame, and his name would be written in golden words. Whereas Mrs. Milton, after the death of her son and husband, she is lonely, she is depressed, and she is living alone. And she is not too much agree with Professor Henry Corey about his new invention, and there is a very hard and controversial conversation between the two. ओके सो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि प्रोफेसर हेनरी कुरी अपनी लैब में बैठा होता है और वो कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कोई एक नई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, और वो क्लेम करते हैं, उसका ये दावा होता है कि वो जो नया बम इन्वेंट कर रहा है ये इतना डिवोस्टेटिंग, इतना तबाहकुन होगा कि एक बम से पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है। और मिसेस मिल्टन जो है उसको मना करती है, क्योंकि मिसेस मिल्टन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हर सन्स एंड हस्बैंड डेथ ग्रीफ, एंड दैट्स व्हाई शी डज नॉट वांट टू हैव many more killings on the surface of this planet Earth. और इस उसका अपना बेटा और अपना हस्बैंड मरा होता है, इसीलिए प्रोफेसर हेनरी कुरी को मना करती है, बिकॉज शी इज सेंटिमेंटल वुमन। वो एक जज्बाती मोहब्बत करने वाली माँ और बीवी है,
اور اسی لیے وہ پروفیسر ہنری کوری اور ان کے درمیان کوئی کیا آ جاتا ہے، وہ تلخی آ جاتی ہے، اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپ ٹو ناؤ in our previous session we have studied this play up to page 216. We have studied this to page 16, and today we are going to start it again from page 216, and it is the last paragraph which is starting right from the middle of this page. You can see here, from here we are going to start this again, and today we will finish it in this lecture. And in our upcoming lecture we will inshallah discuss the short questions as well as the character sketches of this play. So let's, dear students, begin this play, and let me finish this today. Okay. This is distressing you, my dear. प्रोफेसर हेनरी कोरी अपनी बहन को कहता है कि मेरी प्यारी बहन, अपने मरी हुए बेटे को याद ना करो, उसकी यादों को याद ना करो, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब कर रही है. डिस्ट्रेसिंग मीन्स डिस्टर्बिंग. डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर, और इसके बारे में मजीद बात ही ना करो. मिसेस मिल्टन रिकवरिंग herself because she was weeping, she was overcome by emotions, and tears were also coming in her eyes. That's why she is now recovering herself and she is going to talk. He hadn't been at Oxford long when the war began, and then he went off and enlisted. وہ کہتی ہے وہ اپنی ہی بیٹی کو یاد کرتی ہے. who was a captain in army and who was killed in World War First. تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے زیادہ وقت آکسفورڈ میں نہیں گزارا تھا جب جنگ شروع ہوئی. جنگ کب شروع ہوئی؟ یہ 1914 کی بات کر رہی ہے، فرسٹ ورلڈ وار کی. اینڈ دین ہی وینٹ آف، اور پھر وہ چلا گیا، اینڈ انلسٹڈ، اور فوج میں بھرتی ہوا. انلسٹڈ مینس دیٹ ہی واز ایڈمٹڈ ان آرمی. He was enlisted in army. Okay. We didn't know whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly we were proud. I loved him in his clumsy uniform and his great rough boots, just as much as I loved him later on officer's uniform. تو کہتی ہیں ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا جب ایڈی فوج میں بھرتی ہوا کہ اس پر ہم فخر محسوس کریں یا اس پر غصہ ہو جائے کہ آپ نے کیا کیا. یہ تو جنگ شروع ہوئی ہے، تو کیا اب ہم اس پر فخر محسوس کریں کیونکہ وہ اپنی ملک کے لیے، اپنی مدر لینڈ کے لیے لڑ کے جا رہا تھا، یا اس پر غصہ ہو جائے. ہمیں اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم کیا تھے، ہم اس پر فخر کر رہے تھے. اور میں اس کی وہ کلمسی مینس بے وقوفانہ، وہ لباس کلمسی یونیفارم جو نئی فوج میں بھرتی ہونے والی فوجیوں کو دیا جاتا ہے، تو اس میں وہ تھوڑے سے کلمسی لگتے ہیں، تھوڑے سے اکورڈ لگتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کی اس اکورڈ یونیفارم سے محبت کرتی تھی. اینڈ ہیز گریٹ رف بوٹس، اور فوجیوں کو جو جوتے دیے جاتے ہیں جو بڑے رف ہوتے ہیں ٹریننگ کے دوران، تو ٹریننگ کے دوران اس کے جو رف بوٹس ہوتے تھے، اس کا جو کلمسی اکورڈ سا یونیفارم ہوتا تھا، اس سے میں محبت کرتی تھی. جسٹ ایز مچ ایز آئی لوڈ ہم لیٹر آن آفیسرز یونیفارم. اور اسی طرح جب وہ آفیسر بن گیا، وہ جب کیپٹن بن گیا اور اس وہ یونیفارم میں ہوتا تھا، تو جتنا محبت میں اس سے کرتی تھی اس یونیفارم میں، اس کی جو اکورڈ یونیفارم تھی ٹریننگ والی اور اس کے جو رف بوٹس تھے، مجھے وہ بھی پسند تھے کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا اور اسے اچھا لگ رہا تھا، اس سے محبت کر رہی تھی. And when he went off to France, tried to be worthy of my son and not to cry. اور جب وہ فرانس گیا لڑنے کے لیے، فرسٹ ورلڈ وار لڑنے کے لیے جب فرانس گیا، اینڈ وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ مجھے کیا کرے، وہ مجھے ایک مضبوط ماں ثابت کر دے، میری بیٹے ہونے کا ثبوت دے. اینڈ ناٹ ٹو کرائی، اور میں وہ نہیں رویا جب وہ فرانس جا رہا تھا. وہ ایک مضبوط ارادے والا لڑکا تھا، اور میرا بیٹا ثابت ہونے کے لیے وہ فرانس جب جا رہا تھا تو وہ رو نہیں رہا تھا. اٹ فرائٹفلی ہارڈ ٹو اسمائل، اور اس وقت یہ میرے لیے بڑا خوفناک طریقے سے مشکل تھا کہ میں ہنستی، کیونکہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو رہا تھا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے لیے بڑا خطرناک قسم کے، خوفناک قسم کا ایک مشکل کام تھا، بہت زیادہ مشکل کام تھا کہ میں اس وقت ہنستی. ہنری بٹ آئی ڈیڈ اسمائل، لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے، تاکہ اس کو
دلاسا مل سکے, اس کو ثابت قدمی مل سکے, پھر بھی میں اس کے لیے ہنسی. I felt that was what Eddie would wish me to do. اور مجھے محسوس ہوا اسی وقت جب وہ رخصت ہو رہا تھا اور میں اس کے لیے ہنسی, تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ ایڈی جو تھا وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, یہی اس کی خواہش تھی کہ میری رخصتی کے وقت میری ماں ہنستے ہوئے مجھے رخصت کرے, not to shame him before the other people, اور میں رو کر اسے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ نہ کروں. And so I smiled, اور اسی لیے میں ہنسی, and made a little silly joke about the fear of the Germans when they heard of his arrival. اور میں نے اس وقت ایک لطیفہ بھی سنایا, ایک جوک بھی سنایا جو بہت زیادہ سلی تھا, جو بہت زیادہ بے معنی تھا, جس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں تھی, لیکن پھر بھی میں نے اس کی خوشی کے لیے ایک جوک سنایا. اور وہ جوک کس کے بارے میں تھا کہ جب جرمن سنیں گے تو خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ایڈی جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے آ رہا ہے, اس طرح کا کوئی لطیفہ اس نے سنایا. اچھا, بٹ آئی واز ان ٹیرر ہینری, لیکن میں خوف میں مبتلا تھی. ہینری, وہ اپنے پروفیسر ہینری پوری کو قصہ سنا رہی ہے کہ کس طرح اس کا بیٹا اس سے جدا ہوا اور کس طرح پھر وہ اس جنگ میں مرا. اینڈ آل دا ٹائم دیٹ ہی واز اوے آئی واز ان ٹیرر, اور وہ سارا وقت جو مجھ سے دور تھا تو میں خوف میں تھی, میں خوف زدہ تھی. The sight of the telegraph messenger made my heart sink. اور جب پھر آخر کار کیا آیا, ٹیلی گراف میسنجر آ گیا. ٹیلی گراف میسنجر, ٹیلی گراف جو ہے رابطہ کرنے کا, ٹیکسٹ بھیجنے کا, خطوط بھیجنے کا کیا ہے, ایک ذریعہ ہے. تو وہ میسنجر آیا اور ایڈی کے بارے میں خبر لے آیا. تو کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو دیکھ کر, اس میسنجر کو دیکھ کر, اس ڈاکیے کو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا, تیرنے لگا. And then he came home on his first leave, and my little son wasn't my little son anymore. اور وہ کہتی ہیں کہ پھر میرا بیٹا جو تھا وہ اپنی پہلی چھٹی پر آ گیا گھر. وہ فرانس جب گیا تو فرانس سے واپس اپنی پہلی چھٹی پر آیا, اور جب وہ اپنی پہلی چھٹی پر آیا تو میرا وہ چھوٹا بیٹا جو تھا وہ اب چھوٹا بیٹا نہیں تھا, بلکہ کیا ہو گیا تھا, وہ بڑا ہو گیا تھا. بٹ اے اسٹرینجلی گرون مین, لیکن ایک اجنبی سا, وہ اجنبی سا لگ رہا تھا, اور وہ بہت بڑا میچور ہو گیا تھا, آدمی بن گیا تھا. اور وہ کہتی ہیں ینگ ٹو لک ایٹ بٹ فل آف ایکسٹراڈنری نالج. وہ کہتی ہے کہ دیکھنے میں تو وہ ینگ تھا لیکن وہ غیر معمولی علم اس کے پاس تھا. ایکسٹراڈنری مینس غیر معمولی, مطلب یہ تھا کہ اب وہ ایک پروفیشنل لائف میں داخل ہو گیا تھا, اس کے پاس علم آ چکا تھا, اس نے باہر دنیا کی ملکوں کو دیکھا تھا, وہ گھوم پھر رہا تھا, میدان جنگ سے واپس آیا تھا, تو اس کے پاس کئی چیزوں کا علم تھا جو اس کے چہرے سے آیا تھا. Okay, dear students, it's page 217. The first line, I felt shy with him. اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر شرماتی تھی کیونکہ وہ بڑا ہو گیا تھا, میرا بیٹا تھا, لیکن اس میں آدمیوں والا, مردوں والا ایک روب آ گیا تھا اس کے چہرے پر, اسی لیے میں اس سے شرماتی تھی. He had seen so much and knew so much. اس نے کئی چیزیں دیکھی تھی اور اس کو کئی چیزوں کے بارے میں پتا تھا, اس کو علم ہو گیا تھا. اب وہ میرا وہ چھوٹا بیٹا نہیں تھا جب میں اس کو چھوٹے چھوٹے سبق پڑھاتی تھی, قصے کہانیاں سناتی تھی, بلکہ وہ ایک بڑا باروب مرد بن گیا تھا. تو اسی لیے اسے دیکھ کر میں تھوڑی شرماتی بھی تھی, لیکن وہ تو میرا بیٹا ہی تھا اور اس کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا تھا. And then I think I felt prouder of him than ever before. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ اب میں اس پر بہت زیادہ فخر محسوس کر رہی ہوں, because he was a man and I could depend upon him. کیونکہ وہ اب ایک مرد بن گیا تھا, اب میرا وہ ایک سہارا بن گیا تھا, اور میں اس پر, وہ میرا سہارا بن گیا تھا, میں اس پر ڈیپینڈ کر سکتی تھی. وہ ایک باروب مرد بن گیا تھا, ریسپانسبل آدمی بن گیا تھا معاشرے میں. We were very happy during that leave. اور ہم اس چھٹی کے دوران بڑے خوش تھے کیونکہ ایڈی جو تھا وہ گھر پہلی بار چھٹی پر آیا تھا. Henry, so happy that I hardly had time to be miserable because it would so soon be over. And when he went back, although I cried a little when he wasn't looking, I didn't mind so much as I thought I should, because I persuaded myself to believe that he wouldn't be killed. اور پھر کیا ہوا, میں بہت زیادہ مایوس بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ
जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और जब वो छुट्टी ख़त्म होके वो वापस जा रहा था तो मैं थोड़ी सी रोई भी थी। आई क्राइड अ लिटिल व्हेन ही वाज़न्ट लुकिंग। जब वो घर में नहीं था, जब वो अब वो रुखसत हुआ, घर में नहीं था, तो मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी, तो मैं थोड़ी रोई भी थी। आई डिडंट माइंड सो मच एज आई थॉट आई शुड। और मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा जितना मैंने सोचा था कि मैं इतना खफा होंगी। तो मुझे इतना नहीं लगा कि मैं उतना खफा थी। हाँ, अलबत्ता मैं थोड़ी सी रोई थी अपनी बेटी के लिए। बिकॉज आई परसुएडेड माई सेल्फ टू बिलीव दैट, क्योंकि मैंने अपने आप को मनाया था। परसुएड मीन्स माइल करना, मनाना किसी को राइब करना किसी काम के लिए। दैट ही वुडंट बी किल्ड, कि वो इस जंग में नहीं मरेगा। मैंने अपने आप को दिलासा दिया था कि वो इस जंग में नहीं मरेगा। When he had his second leave and he was a captain, और जब वो अपनी दूसरी छुट्टी पर आ गया, कुछ सर्विस करने के बाद अपनी दूसरी छुट्टी लेकर जब वो घर आ गया, और उस वक्त वो कैप्टन बन गया था, कैप्टन के रैंक तक पहुंच गया था। आई वॉज श्योर दैट ही वुड कम होम टू मी, तो मुझे यकीन था कि वो घर मुझे मिलने आएगा, क्वाइट सेफ, बिल्कुल महफूज मेरे पास घर आएगा। वो कैप्टन बन गया था, लेकिन अपनी दूसरी छुट्टी पर वो अपनी माँ के पास ना पहुंच सका। इवन टॉम, हत्ता कि टॉम उसका हस्बैंड और एडी का वालिद, who had always felt we should lose him, जो हर वक्त उसे ये महसूस होता था कि हम उसे खो देंगे, वो इस फौज में, इस आर्मी में, इस लड़ाई में मर जाएगा, उसको हर वक्त ये महसूस होता था, began to believe that he would come home again। तो उसने भी ये सोचना शुरू कर दिया था कि एडी जरूर दोबारा घर आएगा, बट ही डिडंट। लेकिन हेनरी वो कभी भी दोबारा वापस घर नहीं आया। इमीडिएटली व्हेन ही गॉट बैक टू फ्रांस, और फौरन जब वो दोबारा फ्रांस गया, ही हैड टू गो इनटू द लाइन, तो वो वापस अपने लड़ने वाले फ्रंट लाइन पर गया, बॉर्डर पर गया। एंड 8 days लेटर, और 8 दिन बाद, ही वाज किल्ड, उसको मार दिया गया, वो शहीद हो गया वहां फ्रांस में। जस्ट ऑब्लिटरेटेड, बल्कि उसको तबाह कर दिया गया, एज यू से, बाय मेन हु हैड नेवर सीन हिम, उन आदमियों ने उसको कत्ल कर दिया जिन्होंने उसे देखा भी नहीं था। हु डिडंट इवन नो दैट दे वुड किल हिम, दे हैड किल्ड हिम, और उनको ये पता भी नहीं था कि उन्होंने मेरी लेडी को कत्ल कर दिया गया है। एंड ऑल माय इयर्स ऑफ लव एंड होप एंड डिजायर एंड पेन गॉन, और यहाँ पर माँ जो है वो जज्बाती होकर अपनी सारी जिंदगी का जो क्या है, जो उसकी सारी जिंदगी का जो मेहनत था, उसकी जो क्या थी, उसकी जो तकलीफी थी, उसकी जो ख्वाहिशात थी, उसकी जो मोहब्बत थी, उसकी जो उम्मीदें थी, एक ईडी के कत्ल होने के साथ वो सारी चीजें खत्म हो गई। क्योंकि माँ जो है अपनी सारी कोशिशें, अपनी सारी मेहनत, अपनी जो है ख्वाहिशात वो अपनी औलाद के साथ मुंसलिक करती है। लेकिन अगर उसका औलाद मर जाए तो उसकी सारी ख्वाहिशात और तकलीफ़ें और वो एक्सपेक्टेशन सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहती है all the things she had expected, they are gone. I had nursed him and cared for him and taught him little lessons and been proud of him. वो कहती है मैंने उसको पाला पोसा, I nursed him, take care of him, और उसका ख्याल रखती थी, and taught him little lessons, और जब वो छोटा बच्चा था तो छोटे छोटे सबक मैं उसको सिखाती थी, and be proud of him, और मैं उस पर बड़ा फख्र महसूस करती थी। And then in a moment my beautiful son was obliterated him, और फिर एक ही लम्हे में मेरा खूबसूरत बेटा जो था उसको कत्ल कर दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया। His body was obliterated into pieces, और उसकी जिस्म को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। by a shell from the enemy side, और उसका जिस्म दफनाने के लिए भी बाकी ना रहा। तो यकीनन ये एक माँ के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक साबित हो सकता है। Okay, students, there is a slight pause while she recovers herself. You see, don't you, Henry, that I can't take a broad view of that. तो हेनरी आप देखिए कि किस तरह मैं ऐसे इन्वेंशन का, ऐसे बम का जो आप बना रहे हैं, किस तरह मैं इसका एक ब्रॉड माइंडेड व्यू लूँ।
किस तरह मैं खुले जहन से इसको एक्सेप्ट कर दूं कि आप एक ऐसा बम बना रहे हैं जो एडी की तरह बहुत सी लड़कों को कत्ल कर देगा, किस तरह मैं इसको अप्रिशिएट कर सकती हूँ? आई कैन ओनली सी माई सन्स बॉडी म्यूटिलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड एंड दैट्स ऑल। वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की जिस्म को तबाह करती हुई टुकड़े टुकड़े देख कर मेरे बच्चे के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया एक गोला बारूद के एक शेल ने, तो किस तरह मैं आपके एक ऐसे बम को अप्रिशिएट करूं, उसका एक ब्रॉड माइंडेड व्यू लूं जो कई हजार लड़कों को कत्ल कर सकता है। ओके, सो Professor Henry Corey says, well, of course, I quite see your point of view, Charlotte. It is hard. वो कहता है कि हाँ शार्लेट, मैं आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको समझ सकता हूँ और ये बड़ा मुश्किल भी है। आई एडमिट दैट, मैं ये मानता हूँ, बट वी हैव टू कीप आवर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल, लेकिन हमें अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। एंड आफ्टर ऑल देयर इज द कंसोलेशन दैट Eddie did his duty to his country, लेकिन हाँ हमारे पास ये एक तसल्ली तो है, हमारे पास ये कंसोलेशन मीन्स तसल्ली। हम इस बात से तो मुतमईन हैं कि चलो ईडी तो मर गया, लेकिन उसकी मौत रायगा नहीं गया, बल्कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए मरा था। आई डेयर से ही अकाउंटेड फॉर ए गुड मेनी जर्मन्स, और मुझे ये मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि उसने भी कई जर्मन्स को मारा होगा। मिसेस मिल्टन, दैट डजंट कंफर्ट मी हेनरी, ये मुझे कोई सुकून नहीं बख्शता हेनरी कि मेरे बेटे ने भी जर्मन्स को मारा था, इससे मुझे कोई सुकून नहीं मिलता। आई कांट गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ द थॉट दैट सम पुअर जर्मन वुमन इज सफरिंग जस्ट एज आई एम सफरिंग, और उससे मुझे कोई खुशी हासिल नहीं होती कि एक गरीब बेचारी जर्मन खातून भी इसलिए सफरिंग कर रही कि उसका बेटा भी जंग में मरा था, और जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ, जैसे मैं तकलीफ में हूँ, तो इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती कि मेरे बेटे ने भी जर्मन्स को मारा था और उसकी वाइफ जो है, उसकी माँ जो है, वो भी तकलीफ में है, वो भी अपनी प्यारों के चले जाने के बाद तकलीफ में है, तो मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलती। हाँ, मेरे बेटे ने जर्मन्स को मारा हो या ना मारा हो, इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। मिसेस मिल्टन, ओके, नो हेनरी, आई फील दैट आई वुड वांट टू टेक साइड्स विद हर अगेंस्ट मेन लाइक यू, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, मैं ये जरूर सोचती हूँ कि मुझे उन खवातीन का साथ देना चाहिए आप जैसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि आप ही वही लोग हैं जो क्या करते हैं, जो इस तरह के बम बनाते हैं, गोला बारूद बनाते हैं। तो हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उन खवातीन के साथ जो जर्मन्स थे उनका साथ मिलकर आप जैसे लोगों के खिलाफ जो है उनके खिलाफ खड़े होने चाहिए। प्रोफेसर हेनरी कोरी एक्सक्लेम्स एंड ही सेज, men like me, मेरे जैसे आदमी के खिलाफ। मिसेस मिल्टन, यस, पीपल विद ब्रॉड व्यूज, हाँ, वो लोग जिनके क्या ब्रॉड व्यूज होते हैं। बिकॉज यू आर सच फूल्स, क्योंकि आप ऐसे बेवकूफ हैं। समवन लाइक मी, नॉट क्लेवर, और मेरा जैसा कोई जो बहुत ज्यादा होशियार ना हो, क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक माई सन, वो अपने खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। एंड यू, और आप जैसे लोग, विद ऑल योर क्लेवरनेस कैन ओनली डिस्ट्रॉय, और आप जैसे लोग जो अकल और दानिशमंदी होने के बावजूद भी उन खूबसूरत लोगों को आप मार देते हैं, यही आपका क्लेवरनेस है। तो यहाँ पर मिसेस मिल्टन जो है वो साइंस पर बम बनाने वालों पर क्या कर रही है, वो तनकीद कर रही हैं कि दुनिया जो है ये तो ह्यूमैनिटी से भरी पड़ी है, इसमें तो खूबसूरत इंसान रहते हैं, और मेरा बेटा जैसा खूबसूरत था जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं होशियार और दानिशमंद नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक खूबसूरत और हैंडसम बेटे को जन्म दिया था, और आप अपनी दानिशमंदी और जहानत के बावजूद सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप उनको तबाह कर सकते हैं। तो ये कैसी क्लेवरनेस है आपकी? Okay, that's why I think your cleverness can only destroy it. You are fool, Henry. और इसीलिए मैं ये समझती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि आपकी दानिशमंदी जो है ऐसे लोगों को सिर्फ तबाह कर सकती है, उनकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं ला सकती। आप लोगों की दानिशमंदी और आप लोगों की जहानत जो है ऐसे कई हजार लड़कों को, ऐसे कई हजार माओं को दर्द और तकलीफ में मुब्तला कर सकती है।
Corey. Well, of course, Charlotte, with your views, I can hardly expect you to appreciate my work, but I fancy that my countrymen, if they have any sense. प्रोफेसर हेनरी कोरी कहता है कि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट की उम्मीद तो आपसे नहीं रख सकते कि आप मेरे काम को क्या करें, उसको दाद दें, उसकी तारीफ करें, लेकिन मेरे मुल्क के जो लोग हैं जिनमें कोई थोड़ा सा सेंस हो, जो आपकी तरह ना हो, वो ज़रूर मेरे इस काम को, इस नए बम को, डिमोन्स्ट्रेटिंग बम बनाने को अप्रिशिएट करेंगे, इसकी तारीफ करेंगे. will know how to value me, और उनको पता होगा कि वो किस तरह मुझे वैल्यू दे, मुझे क्या दे, मुझे मेरा कदर करे. will make my name known to the most ignorant man in the country, और वो मेरे नाम को इस मुल्क के सबसे जाहिल और ignorant आदमी तक पहुंचाए कि मैंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है. People will talk about the Kori bomb, और लोग फिर कोरी बम के बारे में बात करेंगे, just as they used to talk about the Mills bomb during the war. Okay, Mills bomb याद है क्या students? Mills bomb. अच्छा, मिल जो था, मिल ये एक शख्स था जिसने क्या किया था, जिसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये मिल्स बम जो बड़ा मशहूर था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था. असल में ये हैंड ग्रेनेड्स थे मिल्स बम, और ये छोटे पैमाने पर थे. तो मिल एक शख्स था जिसने ये बम बनाया था, जिसने ये ग्रेनेड बनाया था, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था, बड़ा इफेक्टिव था, तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था. तो प्रोफेसर हेनरी कोरी कहता है कि मैं मिल्स बम की तरह मेरा ये बम भी मशहूर हो जाएगा. I shall have to ask for a large lump sum in payment of the invention, और फिर मैं अपने मुल्क से एक बहुत बड़े पैमाने पर यकमुश्त रकम की अदायगी के लिए क्या करूँगा, मैं डिमांड करूँगा. जो इन्वेंशन मैंने की होगी वो उसके लिए मैं एक लमसम क्या, एक बहुत अच्छी खासी यकमुश्त पैसों की अदायगी का डिमांड करूँगा. बिकॉज रॉयल्टी वुडंट पे मी एट ऑल, क्योंकि जो रॉयल्टी है, जो हमारा शाही सिस्टम है, वो मुझे पैसे ही नहीं देंगे. मिल्स गॉट रॉयल्टी ऑन ईच ऑफ हिज बम्स, मिल्स को पैसे मिले थे हर एक बम के लिए जो उसने बनाया था. बट देन दे वर स्मॉल एंड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम वर यूज्ड, लेकिन वो छोटी भी थी, और फिर भी हंड्रेड और थाउजेंड्स की तादाद में वो बम जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुए. माई बम्स विल बी बिग, मेरे बम जो है वो बिग होंगे, बड़े होंगे. एंड वन ऑफ देम विल सफाइस फॉर ए सिटी, सफाइस मीन्स सफिशिएंट, काफी, और मेरा एक बम जो है वो एक शहर को तबाह करने के लिए काफी होगा. यस, आई शैल हैव आस्क्ड फॉर ए लार्ज लम्प सम, इसीलिए तो मुझे एक बड़ी एक मुश्त के लिए डिमांड करनी होगी. नाउ दैट दे आर स्पेंडिंग सेवरल मिलियंस पाउंड्स on a battleship that is generally believed to be useless, और मेरा मुल्क जो अब एक ऐसी बैटलशिप पर, एक ऐसे हवाई जहाज पर मिलियन पाउंड्स पैसे खर्च कर रहा है जिसे यकीन किया जा रहा है कि वो यूजलेस है, वो बेकार है. I am entitled to ask for a very large sum for my bomb which will certainly decide the war, लेकिन जो बम मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये जंग का फैसला करेगी, इसीलिए मैं इसके लिए एक बहुत बड़े काफी यकमुश्त पैसों का डिमांड करूंगा. आई वॉन्डर हाउ मच आई ऑट टू आस्क फॉर, और फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने इस इन्वेंशन के लिए, अपने इस इजाद के लिए कितने पैसे मांगने चाहिए. शार्लेट, हाउ मच ऑट आई आस्क फॉर, तो वो अपनी बहन से पूछता है कि शार्लेट मुझे कितने पैसे अपने इस इन्वेंशन के लिए चाहिए. दे वोंट गिव मी व्हाट इट्स वर्थ, मुझे पता है कि मेरा मुल्क का जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो इसकी कीमत के बराबर मुझे पैसे नहीं देंगे. दैट्स एब्सोल्युटली सर्टन, ये मुझे बिल्कुल यकीनन पता है. दे माइट पे अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन, शायद वो मुझे क्या करे, वो मिलियन का चौथाई हिस्सा मुझे दे रहे. तो 1 मिलियन जो है वो 10,000, तो कितना होता है 10 lakhs. 10 lakhs 10 लाख को क्या कहते हैं 1 मिलियन. तो क्वार्टर ऑफ मिलियन मतलब ये है कि मिलियन का चौथा हिस्सा कितना बनता है, ये बनता है 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख पाउंड्स. तो कहता है कि शायद वो मुझे 2.5 लाख पाउंड्स दे दे मेरे इस इन्वेंशन के लिए. शार्लेट, व्हाट वुड यू आस्क फॉर इफ यू वर मी, तो वो अपनी बहन से पूछता है कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप ऐसे इन्वेंशन के लिए कितने पैसे मांगती, कितना डिमांड आप करती. मिसेस मिल्टन कहती है आई शुड आस्क फॉर माई सन, मैं अपनी बेटी के लिए कहती, मैं अपनी बेटी का डिमांड करती अपने इस मुल्क से कि मुझे मेरा बेटा वापस दिया जाए.
प्रोफेसर कोरी कहते हैं नो 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 शॉर्लेट नॉट अगेन प्लीज। वो कहता है हाँ हाँ शॉर्लेट नो, अब दोबारा ऐसी बात ना करो। वी मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर नॉट ऑफ द पास्ट। हमें मुस्तकबिल का सोचना होगा, हमें माजी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आई डोंट वांट टू आस्क फॉर टू मच। मैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं मांगता, बिकॉज आई शैल नॉट गेट इट। मैं वो मुझे ज्यादा नहीं देंगे, एंड आई डोंट वांट टू आस्क फॉर टू लिटिल, और मैं बहुत कम भी नहीं लूंगा। दो आई विल प्रोबेबली गेट दैट एनी हाउ। यकीनन ये मुझे किसी न किसी तरीके से ये मुझे मिल जाएंगी पैसे, जो मैं अपनी इजाद के लिए अपनी हुकूमत से, अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा। व्हाट डू यू थिंक शार्लेट? डू यू थिंक इट वुड बी बेटर टू लेट देम नेम अ प्राइस? तो क्या ये बेहतर होगा कि वो डिसाइड करें, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करे कि उनको मुझे कितने पैसे मेरी इस इन्वेंशन के लिए देने चाहिए? मिसेस मिल्टन आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। कोरी वेल यू माइट टेक अ लिटिल इंटरेस्ट इन द मैटर। आपको इस मामले में थोड़ी सी दिलचस्पी लेनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ये मेरा बहुत ज्यादा अहम है। दे आर रियली टू गिव मी अ लिटिल टू अ टाइटल टू। वो कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे कोई खिताब भी दे दे, मुझे कोई टाइटल भी दे दे मेरी इन्वेंशन के लिए। सपोजिंग आई से अ कपल ऑफ 100,000 पाउंड्स, मुझे क्या दे? 100,000 पाउंड्स दे, लाखों की तादाद में मुझे पाउंड्स दे। एंड पीरेज, पीरेज मीन्स मुझे कोई रुतबा दे दे। पीरेज कैसे कहते हैं? पीरेज मीन्स अमीरी का रुतबा, कोई नवाबी का रुतबा, कोई खिताब मुझे दे दे। कोरी thoroughly angry. ओके मिसेस मिल्टन व्हाई नॉट से 30 पीसेस ऑफ सिल्वर? तो आप ये क्यों नहीं कहते कि मुझे सिल्वर जो है, सिल्वर कॉइन्स के 30 पीसेस दे दे? मतलब ये है कि आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको हुकूमत क्या करे, आपको सिल्वर की 30 सिक्के, 30 सिक्के ही क्यों ना दे? वो क्या कहती है, वो उस पर तंज करती है कि आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप की गवर्नमेंट, हुकूमत मुझे सिल्वर की 30 सिक्के दे दे? ये सुनकर प्रोफेसर हेनरी जो है बड़ा गुस्सा हो जाता है। कहता है रियली शॉर्लेट यू आर इनसफरेबल। अब जो है आप बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इनसफरेबल मीन्स बर्दाश्त से बाहर हो, नाकाबिल बर्दाश्त। यू आर एब्सोल्युटली इनसफरेबल, आप मुकम्मल तौर पर क्या है, नाकाबिल बर्दाश्त है। आई पुट अप विद अ ग्रेट डील फ्रॉम यू बिकॉज यू आर इन डिस्ट्रेस। आपको मैंने बहुत बर्दाश्त किया, किस वजह से? क्योंकि आप तकलीफ में थी, आप गम का शिकार थी, इसलिए मैंने आपको बर्दाश्त किया। बट देयर आर लिमिट्स टू एंड्योरेंस यू नो। लेकिन क्या आपको पता है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है? एंड्योरेंस मीन्स बर्दाश्त करना, ये है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स टू बेयर समथिंग, बर्दाश्त करना। यू हैवंट कंग्रेचुलेटेड मी, आपने मुझे मुबारक भी नहीं दी। इवन पफंचुअली, पफंचुअली मीन्स यहाँ है पफंचुअली, पफंचुअली मीन्स एट द सरफेस लेवल, सरसरी तौर पर। वो कहता है आपने सरसरी तौर पर, जुबानी तौर पर, पफंचुअली मीन्स आपने सरसरी तौर पर भी मुझे मुबारक ही नहीं दी मेरी इस इन्वेंशन के लिए। एंड यू हैव मेड योर सेल्फ एंड मी thoroughly miserable by this morning over what can be helped। और आपने बजाय इसके कि आप मुझे कोई सरसरी मुबारक ही देते मेरे इस इन्वेंशन के लिए, बल्कि इस आपने क्या किया, मुझे और अपने आप को क्या किया, मिजरेबल बनाया, गमज़दा बनाया, मुझे भी खफा किया और अपने आप को भी खफा किया। दिस मॉर्निंग, और ये गम करना ये क्या है? व्हाट कांट बी हेल्प, इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। यू हैव इवन मेड हाना मिजरेबल, और आपने मेरे सर्वेंट हाना को भी मिजरेबल बना दिया, उसको भी खफा कर दिया। माय डियर शार्लेट आई एम टॉकिंग टू यू नाउ फॉर योर गुड। यू रियली आर नॉट टू लेट योर माइंड dwell on things the way you do। आपको ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिस तरह आप कर रही है। इट isn't good for you and it's very unpleasant for me and for others to associate with you। और ये आपके लिए, मेरे लिए और वो लोग जो आपके साथ, उनका आपके साथ ताल्लुक है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। योर बॉय वॉज किल्ड, आपका बेटा मार दिया गया। सो वर अदर्स पीपल बॉयज, इसी तरह और लोगों के बच्चे भी मरे। बट वी कांट स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स इन लेमेंटेशन, लेकिन हम अपनी बाकी जिंदगी जो है वो गम मनाती हुई नहीं गुजार सकते। लेमेंटेशन मीन्स गम, मातम करना, गम मनाना। आई हैव माई वर्क टू डू, और मेरा अपना काम है जो मैं करूंगा। मिस मिल्टन योर बम
आप अपने बम के बारे में बात करें? कोरी, yes. Mrs. Milton, which will make the bodies of men and women and little children rot if it does not blow them to pieces. तो आपका बम जो कि बच्चों का, खवातीन का और मर्दों का की जिस्म तबाह कर देगा, आप उस बम की बात कर रहे हैं? कोरी, द फॉर्च्यून ऑफ वॉर, ये तो जंग की किस्मत है माय डियर शार्लेट. आफ्टर ऑल व्हाट डज इट मैटर टू अ मैन वेदर ही इज ब्लोन टू पीसेस बाय बम और स्टेब टू डेथ बाय ए बायनेट. बायनेट किसे कहते हैं? बायनेट जो है ये संगीन को कहते हैं, खंजर को कहते हैं बायनेट. बायनेट तो कहता है, प्रोफेसर हेनरी कोरी कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि शख्स जो है वो बम की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाए या उसको खंजर मारकर मार दिया जाए, वो तो मर ही जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द बम इज मोर मर्सीफुल ऑफ द टू. और अगर हकीकत देख लिया जाए तो बम जो है, इससे मरना जो है ये ज्यादा रहमदिली वाला मामला है, बंदा इससे आराम से मर जाता है. इट इजंट एनी यूज बीइंग सेंटिमेंटल अबाउट दिस थिंग्स, और ऐसी चीजों के बारे में जज्बाती होने से कुछ नहीं पड़ता. द पर्पस ऑफ वॉर इज किलिंग एंड द साइड व्हिच किल्स द मोस्ट पीपल इन दिस इज in the shortest time is going to win the wars of the future. और वो पार्टी, वो कौम, वो मुल्क जंग जीत लेती है जो कम ही वक्त में बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल कर देता है. My bomb will enable those who possesses it to conduct a war in a rapid and efficient fashion. No responsible person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use, and even you, if you are not distracted by what you heard this morning and the fact that this is the anniversary of Eddie's death, would agree with me. तो कहता है कि जो चीज़ें आपने सुबह सुनी, जो आपको किसी ने बताया कि आपके बेटे को दफन नहीं किया गया था, तो शायद फिर आप मेरे साथ एग्री करती और मुझे मेरे साथ जो है आप एग्री करती और ये मान लेती कि मैंने बहुत बड़ा अच्छा इन्वेंशन किया है जो जंग के दौरान को कम कर देगा. लेकिन जो कुछ आपने सुना उससे आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया. मिसेस मेल्टन, नो वन बट यू नोज द सीक्रेट ऑफ योर इन्वेंशन हेनरी. मेल्टन कहती है, मिसेस मेल्टन कहते हैं कि आपके अलावा ये सीक्रेट, ये राज कोई नहीं जानता कि इस बम को कैसे बनाया जा सकता है. कोरी, नो नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ. हाँ, कोई भी नहीं जानता. Mrs. Milton, if you were to destroy your invention, never reveal its secret, thousands of boys like Eddie might live without fear of being destroyed. अगर आप अपने इस इन्वेंशन, अपनी इजाद को दफा कर दे, इसको खत्म कर दे, तो ईडी जैसे कई हजारों लड़के जो है वो नहीं मरेंगे. कोरी ऑर्डर, नो इट्स फैंटास्टिक थॉट दैट्स बट देयर इज नथिंग इन इट. ये बहुत अच्छा ख्याल है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है. अदर पीपल विल इन्वेंट थिंग्स इवन डेडलियर देन माय बम. मिसेस मेल्टन, बट हेनरी, इफ यू वर टू सप्रेस योर इन्वेंशन. कोरी, सप्रेस इट, इसको खत्म कर दो. Milton, yes. If you were to destroy your formula and people were to know what you had done, perhaps you would do a great deal to change people's hearts. अगर लोगों को पता चल जाए कि आपने क्या किया, आपने एक ऐसा फार्मूला बनाया था जो कई हजार लोगों को मार सकता था और आपने उसको खत्म कर दिया, तो आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, उनके दिलों को तब्दील कर सकते हैं. कोरी, my dear Charlotte, most sensible people would think I had gone off my head. लेकिन जो ज़्यादा सेंसिबल लोग हैं, जो ज़्यादा रीज़न वाले लोग हैं, जो ज़्यादा दानिशमंद लोग हैं, वो कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ. A few cranks and religious maniacs might praise me. और कुछ दीनी पागल ऐसे लोग जो पागल होंगे, जो सेंसिबल नहीं होंगे, शायद वो मेरी तारीफ करेंगे. But the average person would think I was a fool, besides being damned unpatriotic. और लेकिन जो सेंसिबल लोग होंगे, जो ज़्यादा अकल फहम वाले लोग होंगे, अगर मैं अपने इस इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ, तो कहेंगे ये मेरी क्या थी, ये मेरी गद्दारी थी मेरे मुल्क से. अनपेट्रियाटिक एक्ट था. पेट्रियाटिज्म किसे कहते हैं? हुब्बुल वतनी कहते हैं. तो इनका अपोजिट क्या है? अनपेट्रियाटिक, मतलब जो अपनी वतन से मोहब्बत ना करे. So dear students, up to now we have read this play to page 219. And in the next lecture, inshallah, we will discuss the last 2 pages of this play, and also I will try to discuss the short questions and the character sketches in more detail. So I think that much is enough for today. Take care of yourself. See you next time. Thank you so much.